During my eye. जब मैं उसके बाद तो मैं जब डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने बोला I remember looking at myself in the mirror and I was like, I don't know what's next in life. एक कोई तो फिल्म रिलीज हुई थी, like a propaganda film. That time things were not going great in my house. No one will ever realize that अगर I'm having a fight with your father, it's because he is a human and not because he's a Muslim. इंस्टाग्राम कमेंट्स में ना लोग कहानियां बनाने लग जाते हैं अब आजकल. शी इज ट्राइंग ऑन अ कमिटेड मैन. ये तो ऐसी कैरेक्टरलेस है, हर कमिटेड आदमी पे अपनी नजर डालती है. I was told by one of my co-actors, male co-actors, कुछ तो हमारा झगड़ा हो गया था किसी चीज को लेके, and he told me that listen, you should just be grateful that I was nice to you on set. Otherwise मेरा बस चलता ना, मैं they always want to be the alpha when it comes to your bedroom story. आज भी बहुत लोग हैं जो बहुत controlling रहना चाहते हैं. It's also a problem with a lot of fathers. They also want to be very controlling. How you treat her will also reflect a lot on her future choices, ना. शर्म नहीं आती अपनी बेटी के कपड़े पहन के घूमने में. I just got a call from my mother and आवाज नहीं आ रही थी कुछ. She's like, just come fast, where have you reached? And I was like, क्या हो गया? And I just entered my society and she was also like running and reaching for the lobby, and I was like, what happened? Hi guys, this is Reem Sheikh and you're watching me on How to Fly. देखिए, आप लोग कहते हैं कि हम हर एज की महिला को लेके आए हैं, तो हम लोग रीम को ले आए हैं ऑन द मेल फेमिनिस्ट. क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया, आप सुनाएं. मस्त, एकदम बढ़िया. यू आर वन ऑफ द यंगेस्ट टू कम ऑन द शो. क्या चल रहा है जिंदगी में? जिंदगी में फिलहाल तो आराम चल रहा है. 2024 वाज एन इवेंटफुल ईयर. कहीं ना कहीं जैसा मैंने चाहा था कि मैं पूरे साल काम करूं और फिर ईयर एंड तक आते आते थोड़ा एक sort of calmness and a little vacation, some time that I can spend with my mom, my family, my dad. God has been very kind, yeah. And seriously. touchwood for also your face, because जितने लोगों ने लाफ्टर शेफ देखा है, वो लोग ने वो एक विटनेस किया है. You saw it close ना, इधर तक जला था. That's almost nearing my eye. जब मैं उसके बाद तो मैं जब डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने बोला था निशान तो नहीं जाएंगे. Because I asked him and he's like, निशान तो नहीं जाएंगे. मेरा पहला जब वो हुआ तो मैंने आंख बंद कर दी, मैंने आंख नहीं खोल रही थी क्योंकि मुझे था कि अगर इधर चाशनी होगी तो आंख के अंदर तो नहीं जानी चाहिए. तो मैं आंख नहीं खोल रही थी. फिर किसी ने आके पानी मारा. भारती दी ने तो मुझे बताया कि उन्होंने मेरी ऐसे पपड़ी निकाली है वो चाशनी की, बिकॉज यहाँ पे वो शुगर है ना, तो वो तो बाहर निकलते ही जम जाता है. ये जम गई थी. that thought that did I lose my eyesight or did I just lose my career? और मुझे तो शादी का भी इतना शौक है कि मुझे दिमाग में वो भी आया था, फिर तो शादी भी नहीं हुई. It was tough because the next day when I woke up na and I saw my face in the mirror, मेरी ये side of the face was swollen because डॉक्टर ने explain किया था कि पानी भर जाता है, like that's the body's way of reacting. Yeah, exactly. I remember looking at myself in the mirror and I was like, I don't know what's going to happen now. I don't know what's next in life. So that was my one moment where I looked at myself in the mirror and I cried and I got out and I was just sitting alone. You can bear. Yeah. So if you've got something in your life, you know that he has only given you because he has also given you the strength to handle it. नहीं ये I think सब religions में ऐसी लाइनें हैं जो हम भी पढ़ के सांत्वना पाते हैं. Yeah. फिर मेरा next thought था कि so many women go through worse acid attacks and whatnot, and so many of them don't even have the money to afford a treatment, surgery. Yeah. और because मेरे पास by the grace of God मैंने इतना काम कर लिया कि मेरे पास plastic surgery का भी option था अगर कुछ बहुत खराब हो जाता. But so many people don't even have that, those resources. I have the best resources. I could get in touch with the best doctors. I could afford the treatment. तो फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार ये हुआ, लेकिन I am still blessed in so many ways. Thank you for the universe for having you in this form and shape and size and intact. मेरे को ये लगता है कि उस दिन वहां पर वो मोमेंट पे सब सही बैठा. मेरा तो मैं बता रही हूँ, मैं चाशनी ऐसे गरम कर रही थी, तो यूजुअली खाना बनाते वक्त आप ऐसे देख के बनाते हो. लकीली भारती दी मेरे बाजू में आके खड़ी हो गई तो मैं ऐसे देख रही थी और मैं ऐसे हिला रही थी और तब वो फटा. Otherwise no Bharti Di would have been there and I would be looking right inside this कि क्या हो रहा है और वो ऐसे भी आ सकता था. 100%. And that would have been worse. That would have surely gone in my eye then. Yeah. I always say this, life is beautiful. Yeah. And I say this every morning, every day.
that life is beautiful. कुछ खराब भी होता है तो वो खूबसूरत बन जाता है फिर मेरी जिंदगी में. बहुत सुंदर. Thank you so much for spreading that positive. लेकिन मेरे को ये बताओ, आप जब बड़ी हो रही थी, आप दोनों रिलीजन्स को एक्सपीरियंस करते हुए बड़ी हुई हो. आई नो दैट आपने बोला भी है कि आप दिवाली भी मनाती हैं, रोजा भी रखती हैं. तो वो बचपन कैसा था? मेरे घर में बचपन में किसी ने रिलीजन फोर्स नहीं किया, ना तो मेरे मॉम ने, ना तो मेरे डैड ने, ना तो मेरी दादी ने जो हमारे साथ रहती थी. मुझे याद है मैं बेडरूम से निकल रही थी एंड आई कुड सी हॉल में दादी नमाज पढ़ रही थी और उसी वक्त मेरी माँ पूजा भी कर रही थी. बहुत सुंदर, क्या बात है. या मुझे नहीं पता ही मेरे पेरेंट्स ने डिस्कस किया था या नहीं कि वो बड़ी होके खुद शी विल फाइंड हर वे. वो मेरे जो भी आया कि मुझे नमाज पढ़ना है वो मेरे दिल से आया, वो मुझे किसी ने बोला नहीं आज तक. सो जो भी हुआ है मेरे दिल से मैंने किया है. बट आई रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स एंड मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरे घर में दिवाली ईद से ज्यादा धूमधाम से बनती है. बहुत सुंदर. हमारे देश की कुछ खासियां हैं जो मुझे हमेशा अनोखी लगती हैं और उनमें से यही है. एंड इवन फॉर माय मदर, लाइक अगर रमजान के वक्त जब सुबह सहरी का वक्त होता है, वो तो हिंदू है, उनको क्या जरूरत है मेरे लिए उठ के खाना बनाने की, बट शी इज द वन हु एक्चुअली वेक मी अप. आई रिमेम्बर मैं टीवी देख रही थी जोर से वॉल्यूम में, मेरी माँ किचन से आई है क्योंकि उनको किचन की खिड़की से आवाज आ गई थी अजान की एंड शी लाइक अजान हो रही है, टीवी बंद कर दे. बहुत सुंदर. So I've grown up in that family. तो मतलब जब मैं जैसे कुछ लड़ाइयाँ ये सब देखती हूँ तो मुझे तो बहुत हंसी आती है यार. क्या बात है. देखिए कई ऐसे उदाहरण होंगे हमारे देश के जो आपके आसपास हो रहे हों जो सिमिलर होंगे रीम की कहानी से. तो अगर आप कमेंट्स में हमें बताना चाहें तो प्लीज शेयर कीजिएगा. सब्सक्राइब कर लो, ऑर्डर फ्लैश में बोलता रहता हूँ प्लीज. कोई स्टीरियोटाइप्स एक्सपीरियंस किए क्या स्कूल में या ग्रोइंग अप सेट पे बिकॉज ऑफ द मिक्स्ड रिलीजन? हाँ, जैसे आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस और नॉट, वेदर टू मच कंट्रोवर्शियल और समथिंग, बट एक कोई तो फिल्म रिलीज हुई थी लाइक लाइक अ प्रोपेगेंडा फिल्म और समथिंग एंड दैट टाइम थिंग्स वर नॉट गोइंग ग्रेट इन माय हाउस. तो आई रिमेंबर मेरी मम्मा की कुछ दोस्त थी जो देखने जा रही थी फिल्म and my mother didn't go. So I asked her that why didn't you go? सब गए. She's like नहीं, अगर वो मैं फिल्म देखने जाती ना तो फिल्म के बाद सारी नजरें मुझ पे ही होती. I was like what do you mean? Because no one will ever realize that अगर I'm having a fight with your father, it's because he is a human and not because he is a Muslim. लेकिन लोगों को वो समझ नहीं आएगा. Yeah. And I didn't know what to say because what she said actually made sense. Yeah. Because मुझे पता है कि people are capable of doing that. हाँ, सही बोली आप. और मुझे लगता है कि मुझे तो आपके माता और पिता के बारे में कुछ नहीं पता है. कई बार हमें भी दूर से किन्हीं कपल के बारे में कुछ नहीं पता होता. तो हम दूर से कमेंट्री जो करते हैं वो मुझे हमेशा प्रॉब्लमेटिक लगती है. इनफैक्ट लाइक मुझे तो लगता है कि आपकी लाइफ में दोस्त भी ऐसे होने चाहिए कि अगर कोई बात शुरू भी करे तो लाइक यार नॉट इन फ्रंट ऑफ मी. Maybe when I'm gone you can discuss but not in front of me please. आपकी लाइफ में वैसे लोग होना भी बहुत जरूरी है. बट ग्रोइंग अप आपका बचपन भी सेट पे निकला हुआ, वो कितना मजेदार था. लोग क्या बोलते थे या आज लोग क्या बोलते हैं अबाउट बचपन दैट यू हैड ऑन सेट? God, it's a long journey of 15 years. अगर आप लोगों को कल्याणी याद है तो आप बताइएगा क्या क्या उनका याद है. मैं वो शो में तो मैं बड़ी हुई हूँ, मतलब मैं 15 साल की जब मैंने शुरू किया और मैं you puberty on screen. या तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? पीरियड्स की क्या याद है आपको? पहली मेरी माँ बहुत भोली और प्यारी सी है तो वो थी थोड़ी ऑकवर्ड मुझे समझाने के लिए ये सब चीजें पहले. एंड आई रिमेम्बर मैंने ना बचपन में वो गारमेंट के शूट्स बहुत किए हैं तो मैं उसी एक शूट में थी एंड इट हैपेंड एंड आई रिमेम्बर आई टोल्ड माय मदर, आई सेड मम्मा वो खून आ रहा है. मैंने सिर्फ इतना बोला एंड दैट वाज माय होल स्टोरी. बट आई डू हैव अ लॉट ऑफ मेल फ्रेंड्स अराउंड मी हु रियली रिस्पेक्ट दैट, who really take care and who can really just be the nicest selves when they know that I am charming. कैसे वो करते हैं ऐसा टेक केयर? व्हाट लाइक मुझे यार एक आदमी का एक लड़की को इतना कंफर्ट लेवल देना कि वो उसको जाके बोल सके दैट कैन यू गो टू द केमिस्ट एंड गेट मी पैड्स, वो भी बहुत बड़ी बात है आज के टाइम पे. एंड माय फ्रेंड्स हैव गिवन मी दैट कंफर्ट. यार हम लोग जो दूसरी दुनिया के बारे में बात कर रहे थे जो सोशल मीडिया की दुनिया है, आपको एक काफी बड़ी तादाद में ट्रोलिंग मिलती है वहां पर, उसको कैसे टैकल करती हो? अब पहले तो बहुत उस वजह से पढ़ते थे कि कांट शी अफोर्ड अ डर्मेटोलॉजिस्ट, इतना काम तो करती है. व्हाई सो मेनी एक्ने ऑन हर फेस? एक्ने तो मतलब वो हार्मोनल होते हैं, पीसीओएस की वजह से होते हैं. वो कारण है एंड वो कारण एंड इफ यू हैव हार्मोनल एक्ने इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल देम. Acne related because of junk food or some food allergy or something can be controlled a little easily.
बट हार्मोनल एक्ने आप आसानी से नहीं कंट्रोल, अब बहुत टाइम लग जाता है। और हम ना तो इतने बड़े एक्टर्स हैं कि अपने एक्ने के हिसाब से शूट रखवाएं, और 12 घंटे शूट करना होता है, ऑलमोस्ट 365 डेज शूट करना होता है। मतलब यू नो यू आर हैविंग योर पीरियड्स, यू कांट टेक इट ऑफ। बट दैट इज डिफिकल्ट टू टेक ना यार। एंड आप लोग जितनी लड़कियां देख रही हैं, हमें प्लीज बताओ कि वर्स्ट कमेंट क्या है आपको एक्ने के ऊपर, हाउ डिड यू टैकल इट? मेरा तो यही था दैट कांट शी अफोर्ड अ डर्मेटोलॉजिस्ट, इतना काम कर रही है, यू नो मैं बता देती हूँ। एक तो कोविड में वैसे ही सबने ही गेन किया था वेट, उसके ऊपर से मुझे PCOS हो गया और वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो गया, उसी वक्त मुझे UTI भी हो गया, तो मैंने गेन वेन कर लिया था। एंड देन शूट रिज्यूम हुई एंड PCOS यू नो हर किसी की बॉडी में बहुत अलग रिएक्ट करता है। जैसे मेरा रिएक्शन था, आई वाज गेनिंग वेट, आई वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ बॉडी हेयर, यू नो ऑफ कोर्स आई वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ एक्ने, एंड देन मुझे कोविड मतलब ट्रिगर्स वेरियस थिंग्स। या तो उस वक्त जो मेरी स्क्रीन पे ट्रोलिंग हुई थी बिकॉज ऑफ द वे आई एम लुकिंग, आई थिंक दैट वाज अ लिटिल टफ टू हैंडल। फिर आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस वाज समथिंग, बट यू नो इंस्टाग्राम कमेंट्स में ना लोग कहानियां बनाने लग जाते हैं अब आजकल, दैट के यू नो शी इज ट्राइंग ऑन अ कमिटेड मैन। और ये कहां से चालू होती है किसी को नहीं पता होता। कैसे बस लाइक यू नो कि जस्ट बिकॉज आई एम वर्किंग विद हिम तो इनकी स्टोरी बना दो कि यू नो ये तो ऐसी कैरेक्टरलेस है, हर कमिटेड आदमी पे अपनी नजर डालती है। दे ऑलवेज मेक मी दैट वुमन जो शादीशुदा या फिर यू नो गाइज हु आर इन अ रिलेशनशिप, उनके रिश्ते तोड़ाने पे तुली हुई है, यू नो शी वांट्स टू बी द थर्ड। ये मैं नया ट्रेंड देख रहा हूँ, पता है, यंग लोगों के साथ होते हुए। एग्जैक्टली, एंड मुझे तो लगता है मुझसे शुरू हुआ होगा, आई स्वेयर। तो किधर से हुआ ये चालू आप Yeah, लोग? just because you know like okay I'm working with them on the same show or something like that, so you end up making me the third औरत. I don't know why. फिर एक ये ट्रोलिंग चलो मुझ तक तो थी, लेकिन अब ट्रोलिंग आजकल होती है, मेरी मम्मा की भी होती है, हाँ बहुत होती है उनकी भी। Now me and my mom is you know she is well maintained, she's young and you know she's very beautiful, this and that, and we exchange clothes. तो उस पे भी ट्रोल करते हैं, शर्म नहीं आती अपनी बेटी के कपड़े पहन के घूमने में। And I was like, बेटी के तो कपड़े हैं यार, और अगर किसी और के भी है तो who are you bro? बिग डील। Exactly, big नॉट deal. योर बॉडी। यार आपको ऐसे नहीं लगता थोड़ा औरतों पे ज्यादा टारगेट होता है? होता है ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा होता है। थोड़ा प्यार बरसा के देखो, मजा आता है। हाँ यार, इट्स जस्ट सच खाली पालतू जाके। एग्जैक्टली, मतलब वो फीलिंग कितनी अच्छी होती है जब आप किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ले आते हो, दैट फीलिंग इज सो नाइस। एवरीबॉडी शुड एक्सपीरियंस दैट फीलिंग, आई एम टेलिंग यू, इट्स ग्रेट। रीम, पे पैरिटी की तो बात करनी ही पड़ेगी। देखिए, जो आपने एक्सपीरियंस किया हो, अगर कोई कहानी हो, कोई स्पेसिफिक इंस्टेंस हो, और आपने कैसे उसको रिएक्ट किया, ये बताओ ना। नहीं, अभी जो मैंने जितने शोज किए एज एन अडल्ट और समथिंग, मैंने तब बहुत फेस किया है ये, लाइक यू नो कि इवन इफ आई एम लाइक कोई मेल एक्टर है एंड ही इज जस्ट बिगन हिज करियर 2 years ago, he still gets more money than me. For real? Yeah. And I was very shocked that just because he is a man, he's getting more money. You know, not that it's my arrogance or something, but I have worked in the industry for 15 years. वो technically उस इंसान का पहला शो है, तो मुझे तो वो बहुत ऐसे दिमाग में मेरे वैसे वो हो गया था कि यार how is this possible? And also once I was told by one of my co-actors, male co-actors, कुछ तो हमारा झगड़ा हो गया था किसी चीज़ को लेके, and he told me that listen, you should just be grateful that you know I was nice to you on set. अदरवाइज मेरा बस चलता ना, मैं तुम्हारी जिंदगी झंड बना देता सेट पे। I was very young and he was old. नहीं, आपकी एज नहीं, but I was young too. जैसे अब भी मेरे को कोई बोले, मैं चढ़ जाऊँ, मैं थप्पड़ मार दूँ, and like you know मैं फिर गालियाँ भी दे दूँ, like you know, but that time I was so young and it was my first experience जहाँ मुझे किसी अपनी उम्र से इतने बड़े इंसान ने ऐसी कोई बात बोली हो और वो मर्द है, मुझे तो समझ में जवाब ही नहीं दे पाई। आई एम सीरियसली टेलिंग, एंड आज मुझे उस चीज़ का बहुत रिग्रेट होता है कि यार सुनाना तो चाहिए था यार। कभी लाइफ में मिलोगी तो बता देना। नहीं यार, मैं आई हैव ऑलवेज बीन दिस पर्सन दैट माय वर्क स्पीक्स फॉर मी, बट यार यू नो दिस एक्चुअली गोज ऑन सेट यार, ऐसा होता है। टीवी कहा जाता है दैट इज अ फीमेल ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म, बट वो सिर्फ स्टोरी लाइन में ही फीमेल ओरिएंटेड रहता है। वर्क वाइज जब आप देखो और आप ये सब चीज़ें सुनो तो इट इज स्टिल वेरी मेल ओरिएंटेड एंड मेल डोमिनेंट, एक्चुअली नॉट ओरिएंटेड, मेल डोमिनेंट। बट ठीक है, अब ऐसे तो मेरे पास मेल को एक्टर्स की कितनी स्टोरी है। या ऑफ कोर्स, एक ने तो मुझे धक्का मार दिया था, लाइक फिजिकली। he was very smart, he did it in a scene,
बट आई ये एक्चुअली कैमरे पे है तो आपको तो दिखेगा उस मुंह का आई नो, भाव बट change सीन होता में है। किया ना, कितना जोर का धक्का मारा था? मेरे को काफी जोर का धक्का मारा था यार। मेरे को मतलब वो मुझे याद है वो धक्के के बाद मैंने कट नहीं करवाया था, आई स्टिल कंटिन्यूड माय लाइन एंड एवरीथिंग, बट कट होते ही द डायरेक्टर केम रनिंग बिकॉज ही थॉट दैट आई ब्रोक माय और एटलीस्ट फ्रैक्चर्ड माय नेक। ओह नो। या ऐसे धक्का मारा था और मैं ऐसे जाके लगी थी, सो ही थॉट दैट ये इतना इम्पैक्ट आया होगा कि कुछ तो हड्डी इधर उधर हुई होगी। अगली है यार। मुझे एडिट से वीडियो आया है, एडिटर ने पूछा मैडम आप ठीक हो, बिकॉज वो जब वीडियो एडिट के लिए गया होगा वो सीन, तो उसका कितने साल मैसेज पुरानी आया बात है है, अभी 2 साल पुरानी बात है। नहीं यार, हाँ। ये गलत है। हाँ, ऐसा हुआ है। Some protective laws should be there on set यार। I face such things and you know, जैसे मुझे एक बार ये भी याद है, I got sunstroke, मतलब मार्च के टाइम में आउटडोर शूट करे था, and I started puking, I was fainting, this and that, मुझे खड़ा नहीं रहा जा रहा था, तो मुझे डायरेक्टर ने बोला please go sleep in the van for some time, and my hair दीदी after 1 hour when I woke up from my nap and you know मैं वापस शूट के लिए निकल रही थी and she was putting on my extensions, she is like मैंने SP को बात करते हुए सुना, कह रहा था कि अरे नहीं नहीं ये तो सिर्फ दोपहर की धूप से बचने के लिए नाटक होता है, ताकि यू नो 12 से 3 तक का गैप मिल जाए और जो धूप है वो चली जाए। शिट यार, मैंने होते देखा है सेट पे। द बी वर्ड इज थ्रोन अराउंड फॉर वुमेन सो वेरी ऑफन कि शी इज अ टोटल बिच, एंड आई नो सो मेनी मेल स्टार्स हु आर सो डिफिकल्ट टू वर्क विद, बट दे आर लाइक यार वो आर्टिस्ट है ना, ट्रू आर्टिस्ट। अरे यार ये क्या बात होती है, महिला आर्टिस्ट नहीं मर्द आर्टिस्ट, फालतूगिरी। It's very difficult to work in a male-oriented world. You really gotta be a very strong-headed girl, and you know, जैसे कितनी लोगों के बारे में you know लोग फैला देते हैं ना कि यार she is a very difficult actress to work with। जैसे मुझे याद है कि एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी जो ना 9 to 9 काम करती थी और 9 बजे उनका ये होता था कि मैं निकल रही हूँ, और मैं हमेशा सोचती थी कि यार एक आधा घंटा तो ठीक है, एंड देन लेटर ऑन हर हेयर दीदी टोल्ड मी कि जब ये नई आई थी ना 20-20 घंटा काम करवाते थे और इधर ही हिलवाते थे और फिर से शूट करवाते थे, तो आज ये जो 1-1 मिनट गिन के काम करती है ना, ये इन्होंने 4 साल इनको जो इनके साथ किया है टॉर्चर, ये उसका नतीजा है। एंड व्हेन इट हैपेंड विथ मी एज वेल, दैट्स द टाइम जब मुझे समझ में आया कि यार ये जो मिनट के लिए लोग हो जाते हैं ना, दैट आई एम वॉकिंग ऑफ, इट्स बिकॉज यू डू नॉट रिस्पेक्ट देम व्हेन दे वर न्यू, जब उनमें वो पावर नहीं थी बोलने की। नहीं एक आध घंटा सब लोग फ्री में एक्सटेंड कर देते हैं। हाँ कितने पैसे भी नहीं मांगते यार, बट इट्स जस्ट अबाउट द वे कि आप अप्रोच क्या कर रहे हो। जैसे मेरा बहुत हुआ, मेरे को कोई बोल देता ना आपको तो करना पड़ेगा, मेरी सटक जाती है। अब तो मैं कर भी सकती थी तो भी मैं नहीं करूंगी। व्हाट डू यू मीन करना पड़ेगा? अब मेरे 12 घंटे खत्म हो गए, उसके बाद आपको 1 घंटा चाहिए, यू हैव टू रिक्वेस्ट मी, यू कांट ऑर्डर मी। या 100%। बट एज अ यंग एम्पावर्ड वुमन आई वुड लाइक टू आस्क यू दिस कि कैसे आप अपने हक के लिए, अपने रेम्यूनरेशन, अपने पैसे के लिए लड़ती हो और क्या बोल के कैसे करके करती हो? यार पैसों के लिए मुझे नहीं लगता मैं ऐसे आज तक ऐसे लड़ी हूँ, बट हाँ अपनी रिस्पेक्ट, अपने दैट यू नो यू गॉट रिस्पेक्ट मी, दैट्स बीन माय एटीट्यूड ऑलवेज। कैसे मांगा? अगर जोर से फुट डाउन करके करना पड़ा तो? नहीं, अब मेरी बॉडी लैंग्वेज में लाइक यू नो व्हेन आई वॉक इनटू एन ऑफिस फॉर अ मीटिंग और एनीथिंग, बिकॉज यू नो मेरा एक एक्सपीरियंस बहुत खराब किया है, लाइक बहुत खराब। मुझे प्रोड्यूसर ऐसे मुंह पे बोलता था तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा शो दिया है तुम्हें, एंड आई वाज लाइक तुमने दिया? तुम कैसे दे सकते हो? मतलब तुम जिस चैनल पे आज शो बना रहे हो उस पे बचपन से काम कर रही हूँ मैं। तुम कौन होते हो मुझे शो देने वाले? So you know after that experience which was very bad कि मतलब like you know producer ऐसे बोलता था, पैसे भी नहीं दे रहा था टाइम पे, तो उसके बाद तो like you know I changed as a human, like I changed. It's my body language, the way I sit, the way I talk, the way I look into people's eyes and talk now. मेरा एक okay, change me to a person who's one of these guys and show me what would happen to you. You already did it in like slightly you're doing it. I see it. आप लोग ने नोटिस किया तो कमेंट से बताना शीट क्या किया है। Just yeah. मुझे ठंडगी लग रही है। हाँ क्या? Okay, I'll think about it. Yeah. That is me. बट जैसे कि कोई 2-3 इंसिडेंट बता सकती हो जहाँ पर आपको दुनियादारी की समझ आई सेट पे होने की वजह से? सेट की अगर मैं बात करूँ तो like I was telling you, अभी जो मेरा वो डायरेक्टर वाला हुआ था, मैं 10 साल की थी,
और सुबह 7 के कॉल टाइम में मैं 8 बजे कुछ पहुंची थी। मैं लेट हो गई थी विच आई नो। तो मैं सेट पे जब गई थी तो मुझे डायरेक्टर ने सेट के बीच में खड़ा रख के मेरी क्लास ली थी, बीच में खड़ा मतलब रख के। चिल्लाया आप पे? चिल्लाया था मुझ पे, मुझे बोला था दैट यू नो कि ये कैसा तरीका होता है काम करने का, तुम्हारे माँ बाप को कोई 10 साल की थी मैं, तुम्हारे माँ बाप को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज़ नहीं है, तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारी वजह से सीनियर एक्टर्स वेट करेंगे तुम्हारा। एंड द मोस्ट लाइक हाउ यू मेंशन एंड हाउ यू ऑब्जर्व, मैंने वो बोला भी नहीं था आपको कि उस वक्त वो सारे सीनियर एक्टर्स वहीं खड़े थे बट किसी ने बोला नहीं था मेरे लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका सैडिस्टिक प्लेजर अंदर उनको मिल रहा था। और ये बड़े डायरेक्टर, बड़ा चैनल, बड़ा प्रोडक्शन, बड़े शो एंड बड़े लोग, लाइक इवन इफ मतलब मेरा तो ये कहना है कि अगर आप बड़े एक्टर हो भी नहीं, लाइक फेमस हो भी नहीं, बट जिस उम्र में आप हो, अगर आप एक 10 साल की बच्ची को यू नो सिचुएशन में देखते हो, यू हैव टू स्पीक अप यार। इफ आई मे एटलीस्ट 10 साल पहले तो टीवी के सेट बड़े टॉक्सिक देखे हैं मैंने। मतलब माइक पे औरत को ऐसा कटाक्ष मारना जिसमें कोई गाली नहीं छोड़ी गई है, उनको ऑब्जेक्ट से कम ट्रीट किया गया है। हर जगह ही होता है, मैंने ये भी लाइक यू नो बिकॉज हम तो तरह तरह के फील्ड के लोगों से मिलते हैं, सो हर किसी की कोई ना कोई कहानी होती जरूर है। बट क्या दुनियादारी सीखी उस दिन ड्रीम? उस दिन शायद से मुझे इतना जरूर पता था कि कभी मेरे सामने ये नहीं होगा। आप किसी और के साथ नहीं होने दोगी? हाँ, मेरे होते हुए कभी ये किसी के साथ मैं नहीं होने दूंगी। एंड दैट्स एक्चुअली ट्रू बिकॉज यू नो जब अब मैं उस सिचुएशन में हूँ वेयर आई यू नो I'm playing the adult in the show. There are kids around me. I have gone and told people कि please अपने director को जाके समझा देना, गालियाँ नहीं देना, बाद में जितनी देना है देना, but when the kid is shooting you can't abuse and you know you have to be patient enough. I think that was the first दुनियादारी की समझ। दूसरी समझ I've never मतलब ऐसे openly मैंने ये चीज़ कभी accept कहीं और नहीं की है, but I come from a divorced family and my parents are separated, they live two different homes. तब I think एक बच्चे को जो दुनियादारी की समझ आ जाती है वो I think वो अलग लेवल की समझ होती है, वो मेरे लिए समझ थी। I think that's also the time when I think I really grew up as well. मतलब क्योंकि मैं नहीं समझ सकता Yeah. तो मैं कुछ सवाल पूछूंगा, अगर आपको नहीं आंसर देना मत करना। आप ये समझते हो कि लव मैरिज और कितनी भी झगड़ा करके लव मैरिज हुई है वो भी टूट सकती है? See, arranged marriage, love marriage, any marriage or any relationship can be broken. You know, the most funniest thing is that even though I come from a divorced family, हमने कितने divorces अभी सुने हैं, गंदे गंदे breakups सुने हैं, but my belief in love has never changed and it never will. Because I am not those के you know नहीं यार ये सब चीज़ें फालतू होती है something. I still believe that no, you know falling in love is the most beautiful thing. And everyone should experience that, and everyone should experience the feeling of being loved correctly. Yeah. But that's true कि कोई भी रिश्ता टूट सकता है. It's not just because arranged marriages टूट जाती है. You know हमें तो लगता है ना माँ बाप की चॉइस कभी गलत ही नहीं हो सकती, वो हमारा कभी गलत नहीं चाहते, पर वो भी टूट जाती है. लव भी टूट जाती है. अरे अभी इस वक्त हमारे देश में 35-35, 40-40 साल से शादीशुदा व्यक्ति लोग भी डिवोर्स ले रहे हैं, भले ही वो किसी भी कारण की वजह से, और ये एक्चुअल डेटा है, नथिंग टू बी जज्ड यार, वो दो लोग के बीच की बात है। एग्जैक्टली वो क्या मालूम, और हमें क्या मालूम कि बिकॉज यार किसी के साथ वो इंसान रह रहा है ना, आप नहीं रह रहे हो। मैं ये सबको बोलती हूँ कि किसी के साथ 4 घंटे बिताना या 4 दिन भी बिताना इज वेरी डिफरेंट देन लिविंग विद समवन। 100%। कई लोग ये भी सोचते हैं कि जहां बच्चे डिवोर्स्ड परिवारों से या सेपरेशन या किसी भी प्रकार के एजी नेचर जो उनको नहीं समझ में आता, जो हमारे नॉर्म्स में नहीं सिखाया जाता, वहां से आते हैं, वही फेमिनिस्ट होते हैं। आप यू स्टॉप लविंग मेन, यू स्टार्ट हेटिंग मेन। आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई थ्रू यू कि फेमिनिज्म इज नॉट मैन हेटिंग। इट्स नॉट एट ऑल। इट्स मुझे भी फेमिनिज्म का मतलब बहुत अच्छे से बहुत पहले तक नहीं पता था, बट feminism is not about hating men. It's just about equality, and people have to understand that you know when we are talking about feminism we are talking about equality, and equality word लोगों को ढंग से समझ में नहीं आया, इसलिए feminism word develop हुआ। equality की हम बात करते हैं, हम नहीं बोलते कि मर्द हमसे कम है और you know they should not be respected or looked down upon, and मर्द बहुत खूबसूरत चीज है। Don't reduce it to like who should pay on a date. Please, yeah, no. Or why he didn't open the door for me or stuff like, why he didn't bring me flowers. Yeah. Chivalry बहुत अलग चीज है. Like feminism और chivalry भी लोग mix कर रहे हैं यार अब तो. And let a man be a man, because unless and until a man is
not giving you that male energy, you will never feel your feminine energy to the fullest. That's what I believe. Interesting. I will also admit that I have been at a place in time when Rima, my partner, she said, "Why do you have to pay? I'll pay." And I was like, "Okay." Yeah. She paid. You feel nice, do it. But then, like, you know, we are delicate. Like, you know, we are strong when it's need, but we are also delicate and Yeah. like, you know, मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी लड़कियां ना वो फीलिंग मिस कर रही हैं अब, the feeling of being loved, because उनके लिए, you know, ये जो कि I am the man, you don't have to be the man of the house, you can be the woman of the house. Yeah. मेरे को ये लगता है रीम कि अगर मुझे एज अ मर्द ये नहीं सिखाया होता कि तुम सख्त बनो, तो मैं भी अपनी डेलिकेटनेस का बाहर प्रदर्शन कर पाता. बट बीइंग डेलिकेट एज अ मैन इज द प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी एंड द पेट्रियार्की. Why do you think Shah Rukh Khan is loved? Yeah. Because he is so soft. Yeah. He's not a sakht londa. He's not masculine at all. While being masculine also. Also, Shah Rukh Khan is the perfect example of that, how you can be delicate but you can still be a man. Yeah. Like the way he respects women, the way I've heard all his interviews, the way, you know, he talks about women. और उनकी एक बहुत अच्छी, मैंने एक ना इंटरव्यू उनका सुना था जो मेरे जहन में रह गया कि वो एक इंटरव्यू में बोल रहे थे कि आजकल लड़के ना लड़कियों को ब्रो की तरह ट्रीट करते हैं. जैसे उन्होंने अपना और काजोल का एग्जाम्पल दिया था, that even though I've known her all my life, but the max that I'll cross the level is that यार काजोल सुन, शाम को घर आ जाइयो खाने के लिए. That was just so beautiful. I'm sure there are men out there who are like this, and why should we not discuss that, right? But generally, you're comfortable talking, you figuring self-pleasure or talking to your partner about what you like or don't like. It's very important for the other person to make you that comfortable enough that you can talk about it. Unfortunately, I've never, you know, had any man or any other, you know, male in my life who has made me comfortable to say that this is not what I'm liking, because, you know, they always want to be the alpha when it comes to, you know, your bedroom story. And अगर आप कुछ बोल दो तो उनका मेल ईगो जो हर्ट होता है, बाप रे, मतलब इतना हर्ट होता है ना कि I've just been like, dude, who are you? I don't know this person. Unfortunately, I've never found people who've made me comfortable enough to talk about कि this is not what I'm liking, I'm not happy doing this or that. No one has made me that comfortable. Like, I've always been very uncomfortable in such relationships. Yeah, I've not been that lucky. I wish you some partners in your life, or just partner, No, whatever, just partner. whatever Yeah. may float your boat. No, but you know, as a woman, I have learned that it's very important to talk about it. It is very important to hold your grounds. It is very important to say कि no means a no. जैसे yes कितनी जल्दी समझ में आ जाता है. हाँ, chance पे dance, हाँ, Yes very जल्दी समझ में आ जाता है. No नहीं आसानी से इतना समझ में आता है किसी को. 100%. To everyone, and because I have, you know, sort of been in a situation like that where I, you know, probably said no, but no one respected that. If you've ever been, you're not alone, first of all, and it's okay. I'm so sorry that you had to go through something like that. It makes an impact. Like, even if it's a fling, and if you say no, but you're still being forced, तो भले आप उस इंसान से प्यार नहीं करते, even if it was a fling, but it will affect you and it might haunt you for the rest of your life. यार, but कोई हमें पता ही नहीं रहा होता ना, हम तो हमारी रेफरेंसिंग गलत टाइप की फिल्मों से कर रहे होते हैं ना. ये हमको यही बताया कि भाई पहला ये होएगा, फिर the girl will, let's say, give you a blow job or whatever, and then you get to fucking. There's nobody talking about the woman's pleasure, her finishing. ये किधर दिख रहा है? Nothing. They don't. No one talks about it, and the men don't care. तो मैंने तो सबसे सुना है, ऐसी कोई लड़की होगी नहीं जिसको बोलेगी कि नहीं यार मेरा पार्टनर ना मुझसे पूछता है. यार ये क्यों नॉर्मल है? ये हंसते क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम लोग? ऐसे मैंने कभी किसी लड़की पीड़ा है, इनकी हंसी के पीछे पीड़ा है. मैंने कभी किसी लड़की के मुंह से ऐसा नहीं सुना हो जो इसने बोला हो ऐसा. क्या पूछ के करते सब. So that is a little sad thing, and I mean, if you're watching this interview, please learn something. And if you have a few good men to be praised in the comments publicly, I'm not even sure if they asked for it. Please go for it. Yeah, please. You know, it's very like, you know, जैसे मतलब हम not that I might sound not so feminist right now, but मुझे लगता है कि हम जितना औरतों को appreciate करते हैं, हमें थोड़ा मर्दों को भी करना चाहिए. You know, at least जो अच्छे हैं उनको तो करना चाहिए. 100%. Because it is very important now. तो फिर यार क्या है जो आपके लाइफ पार्टनर होंगे, उनकी क्वालिटीज जो आप ढूंढती हो क्या है?
पता होता तो अभी तक मैं आई वुड हैव अट्रैक्टेड देम बाय नाउ, आई वुड हैव नॉट बीन सिंगल। काफी टाइम हो गया क्या सिंगल रहते हो? नहीं एक्चुअली मैं सिंगल तो हमेशा से रही हूँ, क्योंकि डेट तो मैं कर रही थी, वो तो सी कर रहे थे मुझे। यू नो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डेटिंग एंड सीइंग समवन आल्सो। मैंने ये बहुत बाद में सीखा है, किसी के साथ ऑलमोस्ट 6 महीने रहने के बाद उसने बोला कि बट वी आर नॉट डेटिंग, वी आर जस्ट लाइक सीइंग ईच अदर, राइट? And I was like, what's the difference? मतलब even if you are like loyal to one person and you're just with one person and it's a proper relationship setup, but still the other person can say that we are just seeing each other, we are not dating each other. Oh my God. So ये भी एक है। तो और मेरे dating साथ कैसे define होता है? It's just a word. I'm telling you, इन्होंने सिर्फ एक ये word का difference बना दिया है। कौन है ये लोग? हरकतें सेम होती है सबकी, लोग? कॉम्प्लिकेशन सेम होते हैं, इनसिक्योरिटी, जेलेसी सब सेम होता है। सिर्फ वो जो बहुत ज्यादा कमिटमेंट फोबिक होता है ना, ये उन जैसे लोगों के लिए जो डेटिंग वाली कमिटमेंट भी नहीं दे पाते, बेसिकली ये वर्ड उनके लिए ज्यादा है, दैट वी आर जस्ट सीइंग ईच अदर। ऐसे वाले ही थे जो भी थे। ऐसे ही मिले मुझे। सो आई हैव टेक्निकली नेवर रियली बीन इन अ रिलेशनशिप बिकॉज तो देन दिस इज अ सिचुएशनशिप। या इट्स बीन अ सिचुएशनशिप, और या तो फिर सिचुएशनशिप है और मुझे बहुत टाइम तक पता भी नहीं रहा है कि अच्छा ये सिचुएशनशिप ही है। आई थॉट अदरवाइज सो आई हैव ऑलवेज बीन इन दैट रिलेशन, इन सच रिलेशनशिप्स कि मुझे वो कमिटमेंट कभी किसी से नहीं मिली है। एंड दैट्स आल्सो बीन my reason always to take a step back from every relationship that I've had. But if you ask about quality, most common respect, but unfortunately वही एक चीज़ है जो हमें सबसे ज़्यादा गला फाड़ फाड़ के मांगनी पड़ती है। Also मुझे ऐसा लगता है that कि अगर आपके किसी आपके पार्टनर से ना आपकी वैल्यूज मैच होनी चाहिए, because आदतें तो बदली भी जा सकती है, कुछ एक्सेप्टेंस भी लाया जा सकते हैं, हम भी बदल लेंगे, बट कोर वैल्यूज जो है ना वो बहुत ज्यादा मैच होनी जरूरी है। एंड ऑल्सो इफ यू आस्क अबाउट क्वालिटी आई वांट अ फैमिली मैन, like वो बैचलर्स एंड लाइक आई कांट लिव विद माय फैमिली फॉर मोर देन अ वीक एंड ऑल, वो वाला नहीं। लाइक आई वांट अ गुड फैमिली मैन, बिकॉज जो इंसान खुद की ही फैमिली में क्लॉस्ट्रोफोबिक फील कर रहा है, वो जब उसकी खुद की बन जाएगी तब भी तो वही फील करेगा, राइट? So a man who really loves his family, and such guys really attract me. Such guys really attract me. Just note it down. यार if you have red flags that you've recognized, तो वो 2-3 क्या होंगे जो आप बोलते हो कि यार ये तो नहीं जमेंगे मेरे को? वो मैंपन, that I am the man. That I know you're the man, I know I'm a woman, but you're the woman. But if you're a true man, you don't have to tell me that you're the man. Your actions or your behavior will very well let me know that you are the man. तो वो वाला ना जो लड़के होते हैं ना, वो एक्चुअली नामर्द होते हैं, और इसलिए उनको बार बार ऐसे जस्टिफाई करना पड़ता है दैट आई एम द मैन, आई एम द मैन, आई एम द मैन। फर्स्ट लर्न व्हाट अ मैन इज यार। तो वो एक है। फिर वो जो emotionally unavailable is the biggest red flag, I think. That the guys who are emotionally unavailable and who run away from such conversations, they are the biggest red flags. And disrespect is a very big red flag. यार ये कितना जरूरी है जानना कि आप किसी और की जिंदगी कंट्रोल नहीं करते हैं और उनकी जिंदगी को अपने हिसाब से तरोड़ मरोड़ नहीं सकते हैं। आज भी बहुत लोग हैं जो बहुत कंट्रोलिंग रहना चाहते हैं। एंड ऑल्सो मैंने काफ़ी अपने लोगों से सुना है, लड़कियों से सुना है, बट इट्स ऑल्सो प्रॉब्लम विद अ लॉट ऑफ फादर्स